भारत विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, जहां हर रंग, हर सुर, हर धड़कन में बसती है संस्कृति, जहां हर राग में इतिहास गूंजता है, हर नृत्य में दर्शन झलकता है और विरासत हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। IGNCA पेश करता है संस्कृति यात्रा, भारत की मूर्त और अमूर्त धरोहरों का अद्भुत सफर। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम संस्कृति यात्रा। भारत एक ऐसी सभ्यता वाला देश है जहां समय केवल बीतता नहीं बल्कि स्मृति और परंपरा के रूप में संरक्षित रहता है। यहाँ परंपरा और आधुनिकता एक दूसरे के विरोध में नहीं बल्कि साथ साथ चलते हुए सांस्कृतिक निरंतरता रचते हैं। गांव की मिट्टी से लेकर शहर की आधुनिक गति तक, लोक गीतों से शास्त्रीय रागों, लोक नृत्य की थाप से सिनेमा के फ्रेम तक, भारतीय विरासत हर रूप में अपनी कहानी कहती नजर आती है। इस यात्रा के पहले सेगमेंट विशेष में हम आपको दिखाएंगे भारत की एक अमेजिंग लेसर नोन और आर्टिस्टिक फोक ट्रेडिशन सांझी को। भारत के नॉर्दर्न और सेंट्रल स्टेट्स में ये फोक ट्रेडिशन जुड़ा है एनुअल वर्शिप ऑफ डिपार्टेड एंसेस्टर्स यानी पितृपक्ष से। 15 दिनों तक चलने वाली ये पूजा मुख्य रूप से अनमैरिड गर्ल्स करती हैं, जिसमें उनकी माताएं उन्हें बस गाइड करती हैं। माना जाता है कि इस अवधि में डिपार्टेड सोल्स धरती पर अपने डिसेंडेंट्स को आशीर्वाद देने आती हैं और सांझी पूजा उनके प्रति अफेक्शन और डिवोशन का एक्सप्रेशन है। हर शाम युवा लड़कियां गाय के गोबर और मिट्टी से दीवारों पर शुभ आकृतियां बनाकर उन्हें रंग बिरंगे फूल पत्तियों से सजाती हैं और फिर सुबह होते ही उसे मिटा दिया जाता है। हर शाम ये आकृतियां नए रूप, नए रंग और नए सिंबल्स के साथ बदल दी जाती हैं। तो आइए चलते हैं राजस्थान के उदयपुर और मध्य प्रदेश के उज्जैन में और देखते हैं फिल्म सांझी के कुछ विशेष अंश। The mystic sky at the twilight hour creates the interplay of light and shade. The shining neolight of the new dawn, the silhouettes of the mountain, create the fabric of nature with the hues of shades, which is the much revered conjunction, union of time. The Indian mind offers a prayer to this hour of conjunction, better known as Sandhya. According to Puranic Encyclopedia, those are known as Prata Sandhya, Madhyana Sandhya, Sayam Sandhya. The conjunction of the journey from the dusk to darkness enthuses creativity at many levels. One such is Sanji, the folk theo-artistic tradition which remains a matter of deep reverence at the folk level. Sanji is no mere decoration, but a revered ritual and play for unmarried girls who aspire for all-round prosperity. The folk aesthetics of Sanji can be seen in Nepal, Bihar, Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh and other places.
Though it remained a folk tradition with varying perspectives in terms of creation and belief system, but in Braja, this has culminated into a temple tradition since the 17th century with its regional color of Radha Bhava. Folk, etymologically speaking, the word Sanchi encompasses various and varying definitions. Some relate the word Sanji with Sajja or decoration. Some stick to the notion of Sandhya, Sanj or evening. The play of aesthetics creation of Sanji remains predominantly a folk tradition, and the concept of Sanja Devi takes the central place in this ritual worship, which travels from Rajasthan to Madhya Pradesh along the side of Vindhya. To fathom Sanja or Sanchi, we travel to southern Rajasthan. Our destination was Udaipur, which was founded by Maharaja Uday Singh. Udaipur remains a city of lakes. The well-defined contours of architectural grandeurs, of heritage fort whose buildings evoke the feeling of sublimity within the broad spectrum of aesthetic depiction. The curves and curvatures, the towering domes of a bygone era, speak aloud about the Rajputana's architectural creativity. Arch within arch provides us a space to travel back in time. And today's Udaipur relives with heritage memoir, with a touch of modernity. Udaipur remains a destination where tinkling ghungaroos and the graceful stride of the camel echoes a musical sensation, which is another punctuation of musical heritage of Rajasthan, apart from the melody of folk tunes which comes out of the string instruments. The sculptural heritage creates the poetry in stone. Udaipur is the heritage city where sacredness and lifestyle gets a space within the grandeur of creativity. The towering Gopuram of Jagdish Mandir builds a heritage corridor to breathe spiritualism. Yet, creativity thrives as we saw Kathputli, the living tradition of Rajasthan. Fathoming the various dynamics of aesthetics, heritage and sacred pulses of Udaipur, we realized that here, civilizations in various times get a conjunction and thrive together in an uninterrupted form of cultural continuum. Folk tradition of Sanjha is one such great living tradition, which we found dotted on the walls of the city houses and in the rural huts as well. Our search begins to fathom creative pulses of Sanji within the broad spectrum creativity of southern Rajasthan, especially in the vicinity of Udaipur. This was the time of Pitri Paksha, a period of astronomical calendar where ancestors and departed souls are worshipped. This is also the time when unmarried girls play and worship Sanjha Mata. Young children collect cow dung and flowers of the autumn to decorate the Sanjha. We also found a plant called Sanjha, whose flower blooms between dusk and darkness and is used for Sanjha making as well. The innocent aspiration even touched a celestial chord
as children sing and perform Aarti to their beloved Sanjha Mata. For 15 days, girls create Sanji, and in the process, even their elders help those tiny hands, which is a matter of training the young mind. Every day, a space is created, which are hemmed with cow dung lays. We also saw the final coat prepared in the urban Udaipur, where the modernity has touched Sanjha, as well as we saw the pre-designed paper-cut motifs are pasted on the coat. Yet, reverence remains a matter of awe-inspiring phenomenon, as we saw the Sanjha coat and her Aarti at Goraji Kalaji Ka Bhairav Colony of Udaipur. Sanji is linked with Abha, or the twilight. This Abha does not allow Indra to reign, as the rainy season seizes its currency. Geeta Devi Tiwari gives some of the dynamics of the oral tradition about Sanjha of southern Rajasthan. So we see Sanjha is not merely a decoration, but a functional art at its ritualistic level. It has its own storylines and studded with varying and differing themes and motives. The deep reverence is seen as we found deep revered preparation for the dismantling of court. And this is a time for Visarjan. It remains an education for girls, as with their innocent tender hands they created Sanjha, and they themselves uncreate or dismantle the same. The theory of creation then uncreation for future's recreation comes to the fore. Girls, escorted by elderly ladies, go out to the riverside and perform Aarti. The Sanjha celebration is over, and as the evening caves in, the dusk, interplayed with light and shade within the cloudy horizon, merges into Sandhya. And the girls await for another whole year to perform Sanjha Mata Pujan again with renewed spirit. Likewise, art ritual soaked with deep spiritual belief continues year after year. भारत की सांस्कृतिक विविधता में रची बसी सांझी आज भी गांव और कस्बों में जीवंत है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी संस्कृति केवल परंपरा नहीं, बल्कि स्मृति, श्रद्धा और सामूहिक रचनात्मकता का एक जीवंत उत्सव है। अब समय है आगे बढ़ने का अगले सेगमेंट संवाद की ओर। आज के संवाद में हमारे साथ जुड़ रही हैं कथक जगत की एक अत्यंत सम्मानित हस्ती पद्मश्री दमयंती जोशी। कथक की परंपरा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली दमयंती जोशी भारतीय शास्त्रीय नृत्य जगत की एक चमकती हुई धरोहर रही हैं। 1928 में जन्मी दमयंती जी ने पंडित लच्छू महाराज और गोपी कृष्ण जैसे महान गुरुओं से प्रशिक्षण लिया। उनके नृत्य शैली लखनऊ घराने की कोमलता, नजाकत और भाव की सूक्ष्म अभिव्यक्ति के लिए जानी जाती रही है। पद्मश्री से सम्मानित दमयंती जोशी ने कथक को वैश्विक मंचों पर प्रतिष्ठा दिलाई और अभिनय, मुद्रा और अभिव्यक्ति को केंद्र में रखते हुए कथक में एक विशिष्ट सौंदर्य शास्त्र से इसे जोड़ा। साथ ही उन्होंने अनेक शिष्यों को प्रशिक्षित किया और कथक की विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाया। तो आइए अब उनका अनुभव, उनकी साधना और कथक की उस आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं जिसके लिए दमयंती जी जानी जाती हैं। आपकी शिक्षा और उस शिक्षा में जो विद्या, जो ज्ञान, जो भक्ति आपको मिली, उसका क्या क्रम रहा?
वैसे देखिए तो मैं बिल्कुल कॉन्जर्वेटिव फैमिली से आती हूँ। आप तो जानती हूँ उन दिनों अच्छे फैमिली में लड़कियाँ डांस सीखना ये तो कोई सोच ही नहीं सकता था। तो हमारे पड़ोस में, क्योंकि मेरे पिताजी तो मैं साल की थी जब गुजर गए थे, पड़ोस में सीताराम प्रसाद जी की एक लड़की को सिखाने आते थे। तो माता जी ट्यूशन वगैरह में जाती थी, तो मैं वहाँ जाके वो आवाज़ आने लगा कि मैं वहाँ गई और बाहर से सुनने लगी। तो उन लोगों ने देखा कि ये लड़की को बड़ा शौक है, वो बुलाते थे हमको। पहले तो मैं नहीं जाऊँ, फिर उन्होंने माता जी से कहा कि इसको भेजिए। अच्छा तो आके बैठो। तो मैं जाऊँ वहाँ और कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन बस यूँ ही करती थी। तो गुरुजी का ध्यान गया, कहने लगे इसको माँ क्या कर, माँ कहाँ है, इसको बुला। तो माता जी को बुलाया। तो माता जी को बुलाया, बोले लड़की को डांस का बड़ा शौक है, इसको सिखलवाइए। अब माता जी कहाँ से सिखाएंगे हमको, वो बेचारे ट्यूशन देती थी, ये करती थी। तो बोले नहीं। तो मेनका जी ने उनको कहा था, मिसेस सोखी ने, उनकी लड़की गुजर गई थी ना, तो मैं बैले बना रही हूँ, आगे मुझे एक लड़की को ऐसे ट्रेन करना है जो मैं जब रिटायर बनूंगी वो मेनका बनेगी। आहा हा। कौन से पाँव पर वजन पड़ के आप चक्कर लेती हैं, ये बड़ी मार्के की बात है ना। एक चक्कर लेना कि यूं करके लेना, हाँ। दूसरा जो आप लेती हैं, हाँ। और वो एक मुलायम ढंग से, हाँ। तो उसमें जो वजन होता है उसके बारे में कुछ कहिए। ये मुझे पहले जब मैं उन्नाव गई थी ना, हाँ। तो अच्छन महाराज जी वहाँ थे। उन्होंने पूछा माता जी से ये किससे सीखी है। तो माता जी ने कहा क्यों, नहीं बोले ये मेरे भैया से सीखी है। ये बात है। तो माता जी ने कहा आपको कैसे बोला, अरे उसका डांस बताता है, मेरे भैया से सीखी है। कभी कोई तबला वादक नहीं मिले, उसके साथ कौन बजाएगा, मैं बजाऊंगा, मेरे भैया के शागिर्द जो है। इस तरह से वो कहते थे। चलन, चाल, गति, ये कथक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। बहुत महत्वपूर्ण। और उसके ऊपर आप बहुत जोर देती हैं। बहुत जोर देती हूँ। ये सही कह रही हूँ? हाँ, मैंने सही बिल्कुल, देखा? बिल्कुल सही। और वो जो चलन है वो आप कैसे समझती हैं कि जब दर्शक को, प्रेक्षक को ये चीज़, तो वो क्या चीज़ है ताल में या अंग में या उसके चलन में जो कि उसको पकड़ती है? उसके लिए रिदम पर कंट्रोल चाहिए आपको। राइट। हाँ। और आपके बॉडी में रिदम चाहिए। वो मुझे भुलाना श्रेष्ठ ने वो रियाज करवा के तबला बजाते थे। जब उन्होंने देखा मैं सीख रही हूँ और मेरा ध्यान है, तो 5 चीज़ें क्या वो पूरा देने लगे। पूरा देने लगे। वो तो फिर जब आदमी को सत्पात्र मिलता है तो खुले दिल से उनका आदमी कहना देता था है। मैं जब ये कुर्सी पर इस जगह में बैठता हूँ तो मेरा दिमाग खुलने लगता है। और यही बात हर एक मास्टर जो हमारे घर आए, उन्होंने हर एक ने यही बात कही कि पता नहीं हम जब इस जगह में बैठते हैं तो पता नहीं हमारी कहाँ से चीजें आती है, निकल आती है। अभी आपने सुना प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना पद्मश्री दमयंती जोशी जी को, जिनका अनुभव और दृष्टिकोण हर कला प्रेमी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अब संस्कृति यात्रा में आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट माटी सुगंध की ओर। अनेकता में एकता भारत की पहचान है, जहां आज भी हमारे फोक ट्रेडिशंस जीवित हैं। भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एक मेगा प्रोजेक्ट चला रहा है, मेरा गांव मेरी धरोहर, जिसका एम है भारत के गांव की कल्चरल मैपिंग करना, ताकि हमारी विरासत को डॉक्यूमेंट किया जा सके। इसी कड़ी में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं बिहार के गया जिले में स्थित कठौतिया गांव की ओर। कठौतिया गांव गुरपा पहाड़ पर स्थित बौद्ध स्तूप के लिए पहचाना जाता है। देश के आध्यात्मिक गांव की श्रेणी में कठौतिया का नाम आता है। बिहार और झारखंड की सीमा पर बसा ये गांव अपने प्राकृतिक खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है। तो आइए चलते हैं कठौतिया। गया
जहां पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, उसी गया की धरती पर है कठौतिया गांव, जहां के गुरुपा पहाड़ पर मौजूद है एक बुद्ध स्तूप। कठौतिया गांव का नाम देश के आध्यात्मिक गांव में आता है। बिहार और झारखंड के सीमा पर बसा ये गांव अपने प्राकृतिक खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है। गुरुपा पहाड़ पर मौजूद बुद्ध स्तूप कठौतिया गांव का प्रमुख आकर्षण है। इस मंदिर की वास्तुकला को देखकर भारत और दक्षिण एशिया का संबंध साफ तौर से देखा जा सकता है। इस गांव में मौजूद है एक शिव मंदिर, जिसका सावन के महीने में बड़ा महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ सावन के महीने में मानी गई हर मनोकामना पूरी होती है। सावन के महीने में यहाँ पर ग्रामीणों द्वारा लंगर की व्यवस्था करवाई जाती है। इस लंगर को चखने के लिए बड़ी दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। गुरपासनी देवी की प्रतिमा प्राचीन काल से स्थापित है। ज्ञान के शहर गया में कठौतिया गांव का एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के लिए ये गांव एक आध्यात्मिक गांव की श्रेणी में आता है। तो ये थी आज की हमारी संस्कृति यात्रा। आशा है आपको पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम को लेकर आपके रिव्यूज हमारे लिए वैल्यूएबल हैं। अगर आपके पास भी अपने गांव, एरिया या फोक ट्रेडिशन से जुड़ी कोई भी वाइटल इन्फॉर्मेशन है तो उसे हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है sanskriti.ignca@gmail.com। आपसे फिर होगी मुलाकात संसद टीवी पर अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय संस्कृति यात्रा के अगले एपिसोड में। और जाते जाते देखिए हाल में हुए कुछ सांस्कृतिक आयोजनों की झलकियां और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि 70 के दशक में हेमा मालिनी का चेहरा या 60 के दशक में शर्मिला टैगोर की मुस्कान ये सिर्फ फिल्मों के पर्दे तक सीमित नहीं थी, बल्कि हमारे घरों के बाथरूम तक चली आती थी। यह वह दौर था जब विज्ञापन सिर्फ बेचने की कला नहीं, बल्कि भरोसा रचने की भाषा हुआ करते थे। है ना दुगनी बेहतर कैस्पर? हमारा बजाज बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज एक साबुन और उसके साथ जुड़ा भारत का सपना। गंगा साबुन है अपना, गंगा साबुन है कोमल झाग भरा गंगा, स्वच्छ गंगा निर्मल गंगा, सुंदर सुगंधित गंगा, विधुल मन भावन गंगा, गोदरेज गंगा इनका शुक्र। विज्ञापन सिर्फ किसी उत्पाद की जानकारी नहीं, बल्कि वह अपने समय की सोच, समाज के रुझान और लोगों के भरोसे का आईना होता है। कौन कहता है गर्मी में अंडा नहीं बनता? अंडे बना दे और सारा अकेला ही खा जाएगा। गरम धरम पर जाओ। एक दौर था जब विज्ञापन डिजिटल स्क्रीन पर नहीं, बल्कि पत्रिकाओं और अखबार के पन्नों पर छपा करते थे, और वहीं से लोगों की पसंद, उनका स्टाइल और उनकी सोच आकार लेती थी। हिंदी सिनेमा ने हमें सिर्फ कहानियां ही नहीं दी, बल्कि ऐसे चेहरे दिए जो हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन गए। स्टार्स शाइन एक अनोखी विज्ञापन प्रदर्शनी है, जहां हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम सितारे पर्दे से उतरकर प्रिंट विज्ञापनों की दुनिया में नजर आते हैं। फिल्मों के अलावा यदि किसी माध्यम ने सिने सितारों को आम लोगों की जिंदगी से सबसे गहराई से जोड़ा तो वह है विज्ञापन। फिल्मी सितारों ने फैशन के ट्रेंड तय किए,
लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत समाज में उनकी विश्वसनीयता है और इसी भरोसे को समझते हुए विज्ञापन जगत ने उन्हें अपने उत्पादों का चेहरा बनाया। यह कहानी केवल अभिनेताओं तक सीमित नहीं रही। बेगम अख्तर, लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफी, मुकेश, मन्ना डे और महेंद्र कपूर जैसे महान गायकों ने भी प्रिंट विज्ञापनों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। एक समय ऐसा भी था जब हेयर स्टाइल पहचान हुआ करता था, जिसे बालों की क्रीम बनाने वाली कंपनियों ने बखूबी समझा और अशोक कुमार, प्रेमनाथ, किशोर कुमार, अजीत, प्रेम चोपड़ा और सुजीत कुमार जैसे सितारों के स्टाइल को विज्ञापनों के जरिए घर घर पहुंचाया। कितने ही सिने प्रेमियों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि मशहूर फिल्म लेखक सलीम खान लेखक के रूप में स्थापित होने से पहले विज्ञापनों में भी नजर आ चुके हैं। स्टार्स शाइन प्रदर्शनी में 1950 से 1990 के बीच पत्रिकाओं और अन्य प्रिंट माध्यमों में प्रकाशित ऐसे ही दुर्लभ विज्ञापनों को संजोया गया है। पिछले वर्ष भी एड आर्ट एग्जीबिशन कार्यक्रम के माध्यम से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के मीडिया सेंटर ने विज्ञापन प्रदर्शनी और चर्चा सत्र के जरिए इस विषय को सामने रखा और इस बार यह यात्रा और भी विस्तार पाती है। विज्ञापनों का संग्रह एक दुरूह कार्य है, इसलिए संभव है कुछ हस्तियों के विज्ञापन यहाँ न दिख पाए हों, लेकिन IGNC की विज्ञापन संग्रह परियोजना लगातार जारी है और आने वाली प्रदर्शनियों में और भी कहानियां हमारे सामने आएंगी।